Hello, my dear student. I am Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, welcome in our lecture for the subject ONS. Dear student, today we are going to discuss about the optical losses. And from that topic, we are going to discuss in this particular session about dispersion loss and bending loss. So let's start with our some departmental vision, mission and program educational objectives. Here it shows the vision of our electronics and telecommunication department. The vision is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineer. ये हमारे डिपार्टमेंट का विजन है। मीन्स आप इसको गोल ऑफ डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तो ये जो विजन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, ये आपको बताता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में, वो हमें अचीव करना है, वो भी डिप्लोमा इंजीनियर्स तैयार करके। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमने मिशन स्टेटमेंट सेट किया है। तो लेट्स सी द विजन मिशन स्टेटमेंट ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। Here I represent the mission of Electronics and Telecommunication Department. The mission is having 5 in number for achieving the vision statement of our department. The very first mission is imparting quality education for to meet society and industry needs. यानी क्वालिटी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा, और वो भी जो सोसाइटी की नीड्स होंगी या फिर इंडस्ट्री की नीड्स होंगी उसके द्वारा। मिशन 2 स्टेटमेंट इज प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट। यानी इथिकल और आउटकम बेस्ड एजुकेशन आपको दिया जाएगा। इनकलकेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग through innovation and co and extracurricular activities among the student। आपको क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव करने के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम अरेंज करेंगे उसके द्वारा हम विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फोर्थ मिशन इज इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन। लीडरशिप स्किल इन्हांस करना या फिर एम्प्लॉयबल आपको बनाना या फिर हायर एजुकेशन के लिए आपको सुटेबल करना, इस तीनों क्वालिटी की द्वारा हम अपना विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सीकिंग कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे आपका बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फोकस करेंगे। सो विद दिस 5 mission statement, we can definitely achieve our vision statement that we discussed in previous slide. Now we move on to program educational objectives in next slide. Here this slide shows the program educational objective. Means after completing your diploma, after 2 or 3 years, this program educational objective is achieved whenever you going for in the industry or whenever you going at higher studies. The program educational objective is very first one is PEO1. This PEO1 means program educational objective 1 that represent provide socially responsible environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related
broad-based problem adapting professional ethics. Second one is adopt state-of-the-art electronics and telecommunication engineering broad-based technologies to work in multidisciplinary work environments. And third one is solve broad-based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. So through this program educational objective, we can definitely achieve our mission as well as our vision statement. Here, this slide shows the course outcome of our second unit and its program outcome mapping. The course outcome for this unit is measure the optical fiber cable parameter. Means after completion of this unit, we are able to achieve this outcome. Means we can measure the different parameters of optical fiber cable, and its PO mapping is here. I mention total 7 POs, right from PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6 to PO7. I map this course outcome to these 7 number of program outcomes. See, PO1 is mapped with at a level 3. This PON is referred as a discipline knowledge. Likewise, up to PO7, I mapped here at a level 1, 3, 2 and 1. So this is related to the course outcome and program outcome mapping. Dear student, after looking into the vision, mission and program educational objective of our department, let's start with our today's topic, that is optical losses. Means whatever the losses which inculcated in a optical fiber cable. So let's start with some learning outcome for our today's session. Here are some of the learning outcome for our today's session. Means after completing our today's session, the learner will be able to explain dispersion loss in detail, explain bending loss in detail, and last one is describe the different types of fiber losses. Means आप सभी आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्पर्शन लॉस और बेंडिंग लॉस क्या है यह आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्कैटरिंग लॉसेस और एब्जॉर्प्शन लॉस के बारे में पढ़ा था, एंड हियर वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द dispersion loss and bending loss. So let's start with our first loss, that is dispersion loss, which will be going to study in our next slide. So here I represent what do you mean by dispersion loss. The dispersion is a measure of the temporal spreading that occur when a light pulse propagates through an optical fiber. मतलब डिस्पर्शन लॉस जब लाइट सिग्नल ट्रैवल करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू तब ऑकर्ड होता है, बट पर्टिकुलरली दिस डिस्पर्शन लॉस इज ऑकर्स व्हेन लाइट पल्स प्रोपोगेट्स थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर. यानी लाइट पल्स प्रोपोगेट होती है फाइबर केबल के अंदर, अगर उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आता है या फिर डिले आता है तो लाइट का जो पल्स है वो पल्स ब्रॉडन होता है, यानी वो पल्स ब्रॉड होती है. अगर वो ब्रॉड होंगी तो डिस्पर्शन लॉस फाइबर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन के अंदर आ सकता है. Dispersion is sometimes referred to as a delay distortion in the sense that the propagation time delay causes the pulse to broaden. यानी डिस्पर्शन को हम कभी डिले डिस्टॉर्शन
इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। मान लीजिए एक पल्स बहुत पहले ट्रैवल कर चुकी है, देन उसके बाद सेकंड पल्स ट्रैवल हो चुकी है, तो इसमें डिले आ चुका है फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ लाइट पल्स। तो दैट पर्टिकुलर डिले कॉज द डिस्टॉर्शन, मीन्स प्रोपोगेशन टाइम में डिले अगर आता है तो डिस्टॉर्शन आएगा। दैट कॉजेज ब्रॉडनिंग ऑफ पल्स, यानी जो पल्स रहेंगी वो ब्रॉड होंगी। अगर वो ब्रॉड होती है, दैट पर्टिकुलर लॉस इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन लॉस। इज इट क्लियर? दिस इज द फंडामेंटल behind this dispersion loss. Now here I represent the concept behind the optical loss, that is dispersion loss. Here, as an optical signal travels along the fiber, it becomes increasingly distorted. मतलब ऑप्टिकल सिग्नल अगर फाइबर केबल के अंदर से ट्रैवल करता है तो वो डिस्टॉर्टेड होता है, यानी उसका डिस्टॉर्शन इंक्रीजिंग पैटर्न में होता है। दिस डिस्टॉर्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ इंटरमोडल एंड इंट्रामोडल डिस्पर्शन। नाउ दिस इंटरमोडल एंड इंट्रामोडल, इट इज़ द टाइप ऑफ डिस्पर्शन. So what do you mean by intramodal, intermodal, and what do you mean by intramodal? Let's discuss in our next slide. So you just first think about that or remember that intermodal dispersion means this particular intermodal dispersion is causing by the broadening of pulses, or this intermodal dispersion caused because of propagation delay in optical pulses, and this intramodal dispersion is causes because of spreading of light. लाइट अगर स्प्रेड होता है तब जाके इंट्रामोडल डिस्पर्शन आता है। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि डिस्पर्शन जो लॉस है वो प्रोपोगेशन डिले अगर आता है लाइट सिग्नल के अंदर थ्रू द फाइबर केबल तभी वो आता है। So here I represent what do you mean by intermodal dispersion and what do you mean by intramodal dispersion. So here intermodal dispersion is pulse broadening due to intermodal dispersion results from the propagation delay differences between the modes within the multimode fiber. Generally, this intermodal dispersion is occurred into the multimode fiber. मल्टीमोड फाइबर क्या है ये हमने प्रीवियसली फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल में, जिसमें सिंगल मोड और मल्टी मोड भी होता है। अगर सिंगल सिग्नल हम ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ सिंगल मोड। अगर एक से ज़्यादा हम लाइट सिग्नल पास कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ अ मल्टी मोड। अगर मल्टी मोड फाइबर है तो ज़्यादातर मल्टी मोड फाइबर में अलग अलग प्रकार के लाइट सिग्नल हमें ट्रैवल करना होता है, पास करना होता है, तो उसका प्रोपोगेशन डिले भी अलग रह सकता है। तो जो प्रोपोगेशन डिले डिफरेंस है मोड मल्टी मोड फाइबर के अंदर, तब उसमें ज़्यादातर पल्सेस जो है लाइट की वो ब्रॉड होती है, एंड उसी लॉस को हम बोलेंगे इंटरमोडल डिस्पर्शन। एंड सेकंड वन इज इंट्रामोडल डिस्पर्शन. नाउ दिस इंट्रामोडल डिस्पर्शन इट इज़ द पल्स स्प्रेडिंग दैट ऑकर्स विद इन अ सिंगल मोड. नाउ दिस इंट्रामोडल डिस्पर्शन जनरली ऑकर्ड इन सिंगल मोड ऑफ फाइबर, यानी सिंगल मोड में ये पर्टिकुलरली आता है इंट्रामोडल डिस्पर्शन, और ये ज़्यादातर रिलेट करता है मटेरियल डिस्पर्शन के रिलेटेड या फिर वेवगाइड डिस्पर्शन के रिलेटेड. तो मटेरियल मतलब जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, एंड सेकंड वन इज वेवगाइड डिस्पर्शन, यानी जो मोड होगा ट्रैवलिंग का दैट इज कंसिडर्ड इन अ वेवगाइड डिस्पर्शन. सो लेट्स डिस्कस विद material dispersion and waveguide dispersion. So here I represent what do you mean by material dispersion and what do you mean by waveguide dispersion. Particularly it is the type of intramodal dispersion. So let's discuss with about it. So material dispersion means it is also known as spectral dispersion or chromatic dispersion. Material dispersion जो इंट्रामोडल डिस्पर्शन के टाइप्स है उसको हम स्पेक्ट्रल डिस्पर्शन या फिर क्रोमैटिक डिस्पर्शन भी बोल सकते हैं. बट वाई दिस मटेरियल डिस्पर्शन इज ऑकर? बिकॉज ऑफ वेरिएशन ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोअर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. मतलब आपको पता है
कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल एक कोर मीडियम और दूसरा क्लैडिंग मीडियम से बना हुआ रहता है, तो जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, उसको हम एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ कंसिडर करते हैं तब, और उसमें अगर वेरिएशन आता है तब जाके हमारा मटेरियल डिस्पर्शन आता है। तो मटेरियल डिस्पर्शन मीन्स कोर इट इज़ द मटेरियल फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, तो अभी कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम वेवलेंथ एज अ फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं और उसमें जो वेरिएशन आता है तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ विच पल्स स्प्रेडिंग ऑकर्स इवन व्हेन डिफरेंट वेवलेंथ फॉलो द सेम पाथ। तब जाके अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन आता है तब जाके हमारे जो लाइट्स पे पल्स है वो क्या होती है, स्प्रेड होती है। अगर स्प्रेड होती है तो हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एज अ इंट्रामोडल मटेरियल डिस्पर्शन लॉस। नेक्स्ट वन इज वेवगाइड डिस्पर्शन। नाउ वेवगाइड डिस्पर्शन मीन्स व्हाट, whenever any optical signal is passed through the optical fiber, हम ऑप्टिकल फाइबर द्वारा जो भी लाइट सिग्नल पास करते हैं तो प्रैक्टिकली 80% ऑप्टिकल पावर ये ज़्यादातर जाता है कोर में एंड 20% पावर जाता है ज़्यादातर क्लैडिंग में। एंड यू नो दैट आवर ऑप्टिकल फाइबर केबल इज मेड अप फ्रॉम द टू मीडियम, दैट इज कोर एंड क्लैडिंग। कोर हैविंग अ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्लैडिंग हैव अ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ज़्यादातर हम कोर मीडियम के द्वारा लाइट पास करते हैं और वो क्लैडिंग इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होते हुए पास होता है। तो प्रैक्टिकली 80% पावर हमारा कोर एब्जॉर्ब कर लेता है और रेस्ट ऑफ द 20% पावर एब्जॉर्ब कर लेता है क्लैडिंग। अगर चेंजेस होते हैं दैट मीन्स इट इज़ अ वेवगाइड डिस्पर्शन जो हमारी लाइट इंफॉर्मेशन लॉस कर सकता है। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट bending next optical loss, that is called as a bending loss. Okay, now here we discuss about the next optical loss which is particularly occurred whenever we go for the longer distance communication with the help of optical fiber cable। means ज़्यादातर जब हम लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हमें फाइबर ऑप्टिकल केबल को बेंड करना ज़रूरी होता है। जैसे हम अगर फाइबर ऑप्टिकल केबल के द्वारा हमारे घर के अंदर नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ऐसे बहुत से प्लेसेस होंगे जहाँ पे हमें फाइबर ऑप्टिक केबल को बेंड करना ज़रूरी होगा, बिकॉज एकदम स्ट्रेट लाइन में हम नेटवर्क इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं या फिर ये पॉसिबल नहीं होता है कुछ जगहों पे। तो जब भी हम बेंड करते हैं तो हमारी कुछ अमाउंट इंफॉर्मेशन लाइट फॉर्म में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो सकती है। अगर बेंडिंग के वजह से हमारे लाइट सिग्नल लॉस होते हैं, इंफॉर्मेशन लॉस होते हैं, तो उस प्रकार के लॉस को हम बोलेंगे बेंडिंग लॉस। जो कि फाइबर को बेंड हमने किया उस वजह से हमारा लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ बेंडिंग लॉस। ओके, सो लेट्स डिस्कस हियर व्हाट डू मीन बाय बेंडिंग लॉस इट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है द लॉस विच एग्जिस्ट व्हेन एन ऑप्टिकल फाइबर अंडरगोज बेंडिंग इज कॉल्ड एज अ बेंडिंग लॉस। यानी जो भी लॉस आता है बेंडिंग के कारण, यानी फाइबर ऑप्टिक केबल, आपको पता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल ये ग्लास मटेरियल से बनता है या फिर सिलिका मटेरियल से बनता है जिसमें कोर और क्लैडिंग इंटरफेस होते हैं, मीडियम होते हैं। तो इसको बेंड करना उतना इजी नहीं है क्योंकि हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल बेंड की वजह से वो ब्रेक भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ मेड अप फ्रॉम ग्लास मटीरियल। तो उससे हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है बेंडिंग के कारण। तो जो भी बेंडिंग के कारण लॉस आएगा हम उसको बोलेंगे बेंडिंग लॉस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग मतलब वहाँ पे ज़्यादातर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को टिल्ड करते हैं। टिल्ड मतलब उसको ज़्यादा बेंड करते हैं। और अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्लाइटली बेंड करते हैं, यहाँ पर ड्यू टू सम
प्रेशर के कारण अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल थोड़ा सा हमारा बेंड हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। इज इट क्लियर? तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इमेज रिलेटेड टू द माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग एंड माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। तो हियर very first we will discuss about the microscopic bending. Macroscopic bending means a bending in which complete fiber undergoes bend which causes certain mode not to be reflected and therefore cause loss to the cladding. यानी ज़्यादातर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को बेंड करते हैं, यानी कंप्लीट बेंड करते हैं, और उसकी वजह से हमारे लाइट सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। अगर लाइट सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं हुए दैट मीन्स इट इज़ अ लॉस विच इज़ ऑकर्ड ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग। तो मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग मतलब कंप्लीट फाइबर को बेंड करना। ओके, नाउ द सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग मीन्स either the core or cladding undergoes slide bend. स्लाइड बेंड मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक। वो बेंड स्लाइड बेंड जो है वो क्लैडिंग के अंदर भी आ सकता है या फिर कोर के अंदर। इट कॉजेज लाइट टू बी रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल्स व्हेन देयर इज़ नो फर्दर रिफ्लेक्शन। मतलब कुछ एंगल पे उसका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है लेकिन फर्दर रिफ्लेक्शन स्लाइड बेंड की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो उस प्रकार के बेंडिंग को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द बेंडिंग लॉसेस में एंड इट्स टाइप, दैट इज मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग एंड माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। सो इन नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल सी the image related to the microscopic bending and microscopic bending. So here I represent one image related to the bending loss. It shows the macroscopic bending and microscopic bending. See here, the upper image shows the macroscopic bending. See, this is our light ray which enter into the optical fiber cable. See, this is the core medium. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा core medium है, and this is the cladding medium. This is the lower portion of cladding and this is the upper portion of cladding. So when the light ray enters into that, then it will reflect from the core cladding interface, and again here it touch to the core cladding interface and again it will reflect. See, but here a bending is occurs, means the core material, जो भी कोर मटेरियल है उसका बेंडिंग यहाँ पे, हाँ, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल को हमने यहाँ से बेंड कर डाला, यानी ये इधर स्ट्रेट में जाना था तो इसको हमने क्या कर डाला, बेंड किया, क्योंकि ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑप्टिकल फाइबर को बेंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो गया, यानी ये यहाँ से यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ पे हुआ। सेम ये जो दूसरा रे यहाँ से रिफ्लेक्ट यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे हुआ और यहाँ से यहाँ। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर चेंज हुआ ड्यू टू बेंडिंग, तो उससे लाइट का हमारा जो लाइट का जो इंफॉर्मेशन है, जिस लाइट के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। तो ड्यू टू दिस बेंडिंग, यानी ये पूरा कंप्लीट हमने बेंड कर दिया, इसलिए इसको हम मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारा इंफॉर्मेशन, लाइट इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। तो माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग मतलब स्मॉल बेंडिंग। सी, अ वेरी स्मॉल और स्लाइट बेंडिंग इज ऑकर इनटू दिस कोर मटेरियल। ये अपना कोर मटेरियल है और ये ऊपर वाला क्लैडिंग और नीचे वाला भी क्लैडिंग। तो जैसे ही लाइट रे इसमें एंटर्ड हुआ, यहाँ से सिग्नल रिफ्लेक्ट हुआ, रेड सिग्नल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से, और ये आगे चले गए। सेम अगर ब्लू सिग्नल की बात करें तो यहाँ से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, ये तो जाना था यहाँ पे, बट बेंडिंग की वजह से ये इधर अगर रिफ्लेक्ट होना था तो ये यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो स्लाइड बेंडिंग के वजह से भी जो भी, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल ब्रिटल इन नेचर होता है, क्योंकि वो ग्लास और सिलिका मटेरियल से बना हुआ रहता है, इसलिए स्लाइड बेंडिंग भी हमारी इंफॉर्मेशन लॉस कर सकती है। तो जो भी स्लाइड बेंडिंग आते हैं ड्यू टू exerting some pressure, उस प्रकार को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेंडिंग लॉस।
ओके, आई होप कि आपको बेंडिंग लॉस जो माइक्रोस्कोपिक बेंडिंग है और मैक्रोस्कोपिक बेंडिंग है ये आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा. So here I summarize our today's session, which was probably discussed on dispersion loss and bending loss. So after completing our today's loss, the learners are able to now explain dispersion loss in detail. Second one is explain bending loss in detail, and third one is describe the different types of फाइबर लॉसेस. मीन्स आप आज के सेशन में आपने डिस्पर्शन लॉस और बेंडिंग लॉस क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, ये डिटेल में पढ़े. और प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर मिला के आप ऑप्टिकल फाइबर के केबल के अंदर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल लाइट कौन कौन से लॉसेस आते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था एब्जॉर्प्शन लॉस, स्कैटरिंग लॉस, देन आज हमने डिस्कस किया डिस्पर्शन लॉस और बेंडिंग लॉस के बारे में. ये चारों जो लॉस हमने ऑप्टिकल लॉस के रिलेटेड डिस्कस किया, इसको आप अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. आई होप आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा. फॉर मोर डिटेल यू जस्ट रेफर द नोट्स विच वॉज प्रोवाइडेड ऑलरेडी इन अवर गूगल क्लासरूम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. Thank you so much. In our next lecture, we will discuss, or we will going to start our next unit, that is unit number 3rd.